guys, welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Nogat, and this is me, Nikita Mehra. And today we're going to talk about the most requested topic and also for the one topic जिसके बारे में आप सबको ही जानना होगा, but you were not able to ask it directly. So here is a video about it, that NIFT is worth it or not. Because the thing is, if we are giving our 4 years to any of the courses or any of the institutes, we want कि हाँ भाई वो इतना trustworthy हो कि हम उस पर इतना time waste करें, इतना हर resource लगाएं. So that is the topic we're gonna cover today, and उसके बारे में हम सारी बातें करने वाले हैं. And we're gonna also talk about my own personal experience, which was there for the whole years that I have given to NIFT. So just for my introduction, I'm Nikita Mehra and I am doing my BF Tech from NIFT Mumbai, and I'm currently in my 4th year. I'm doing my graduation project, and I did my textile internship, I did my apparel internship, and now I'm doing my graduation project. And hopefully, and also with all my luck, I'll be graduating this year in May. So yes, that is it about me. So let's get into the video. So before that, we've been talking about the NIFT 2026 entrance, also of the crash course, also of the other things that have been covered in my channel. So मैं सारे के सारे list down कर दूंगी नीचे. GAT and CAT. We also discussed one sample paper on the situation test and as well as on the CAT syllabus. So I feel you are free to go and check it out on my description. मैंने उसके बारे में already पहले बात कर चुकी है. So if you have not checked that out, you should go and get a clear idea if you are sitting for the NIFT entrance exam 2026. So yes, let's get into today's topic. So the first thing which we need to talk about is आपको क्या क्या सीखने को मिलता है once you get into NIFT. So if you are signing up for the undergraduate program or if you are starting with the master's program, it also depends. Now let's talk about what NIFT offers. NIFT offers BF Tech and BDES. BDES have 6 other departments, and BF Tech also has its specialized department which is called as DFT, which is Department of Fashion Technology. So ये दोनों के दोनों थोड़े से अलग हो जाते हैं एक दूसरे में, एंड इसीलिए इसका एंट्रेंसेस भी अलग अलग रखे जाते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर द BDES, then your life will be more little bit of hectic because आपको पूरी रात भर जग जग के काम करना ही पड़ता है. And then when I see my journey from the first year to the last year, trust me, मैं first year में और second year में सो जाती थी रात को 12 बजे ही. 10 तो बहुत जल्दी बोल दिया मैंने. But once I entered 4th year, ट्रस्ट मी, इस सेमेस्टर मैं लास्ट की जूरी में सोई ही नहीं हूँ, बिकॉज जूरी इन लोगों ने, एक तो वैसे ही वाला सेमेस्टर बहुत छोटा होता है जो दिसंबर से शुरू होता है, दिसंबर से भी नहीं, जनवरी से शुरू होता है. हैव लेस टाइम एंड ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर. क्लासेस टाइम से नहीं होती, कभी कभार कोई ग्रुप प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि किसमें हमारा ज़्यादा टाइम चला जाता है. सो इस टाइम तो मैं जूरी में सोई ही नहीं हूँ. मुझे याद है मैं 4 बजे सोती थी एंड देन मैं 6 बजे उठती थी, पढ़ती थी या फिर अपना काम करती थी, जूरी का काम एंड ऑल दैट थिंग. एंड ऑल्सो द बर्डन इंक्रीजेज एज यू गो फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर. तो जो लोग फर्स्ट ईयर में गिव अप कर देते हैं, आई हैव सीन मुंबई से 3-4 बच्चे, 2 बच्चे तो हमारी क्लास से ही चले गए थे. दे विड्रॉन द एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर ओनली बिकॉज उनसे हो ही नहीं रहा था. And that is the thing, like NIFT is a lot to accept things because अचानक से आपके सर पे इतना सारा काम आ जाता है. And then there are some uncontrollable parameters in that. For example, I'll just give you, मुझे बोला है कि मुझे शूट करना है, ठीक है. सो इसमें हम चीज़ें सीखते हैं. सो इससे पहले मैं बता देती हूँ कि NIFT टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें से एक होता है फोटोशूट एंड फोटोग्राफी. इफ़ यू आर इन BDES तो आपको करना ही करना पड़ेगा इन फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर ओनली. बट इफ़ यू आर इन BF Tech, तो अगर आप IDM लेते हो, किसका IDM लेते हो, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग का IDM लेते हो, फैशन कम्युनिकेशन का IDM लेते हो, तब तो आपको करना ही करना पड़ेगा. बिकॉज आई टॉक फैशन कम्युनिकेशन का IDM एंड आई डिड द फोटोशूट. सो उसमें अनकंट्रोलेबल पैरामीटर्स कैसे होते हैं, दैट वन डे अगर आप खुद सेल्फ मॉडल हो तो आपकी दुनिया तो भी थोड़ी बेटर है. लाइक आई वाज सेल्फ मॉडलिंग माई होल शूट, लाइक सेल्फ पोर्ट्रेट हो गया था वो. समटाइम्स इफ़ यू टेक मॉडल्स आर नॉट अवेलेबल बिकॉज आप अपने साथ के ही बच्चों को लेते हो, एक टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगी. लाइटिंग का बहुत इशू होता है, सबको गोल्डन आवर पिक्चर चाहिए होता है, बट सन आते आते आप खुद थक जाते हो, छुट्टी नहीं मिलती एक्स्ट्रा इसके लिए. The one thing is, in college you will not get holidays before your assignments and even before your juries because
मुंबई कैंपस तो देता ही नहीं है भाई कभी छुट्टी, प्रिपरेशन लीव हमें कभी मिलती ही नहीं है, मुझे याद भी नहीं आ रहा हमें लास्ट प्रिपरेशन लीव कब मिली थी फॉर देम, बट इफ़ यू विल नॉट गेट इट तो आपको खुद से टाइम निकालना पड़ेगा। लाइक लेजिट पीपल स्किप मील्स, मैंने खुद बहुत बारी मील स्किप किए हैं जस्ट कि मेरा काम हो जाए। सो गोल्डन आवर में सबको पिक्चर चाहिए, एंड देन लोकेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, एंड में लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, फ़ोटो लेते हैं कैमरे से रोल से डिलीट हो जाती है, देन यू हैव टू सिट फॉर एडिटिंग, यू कांट गिव रॉ इमेजेस टू योर फैकल्टीज बिकॉज दिल गेट टू नो कि भाई ये तो खींची थी और ये आ गई, देन टू क्लिक ईदर यू वांट अ नाइस आईफोन, ईदर यू वांट नाइस DSLR, फ्रेंड से अरेंज करो, कहीं से अरेंज करो, नहीं तो एडिटिंग में बैठो। दो चीज़ें अपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, या फिर एडिटिंग आपकी अच्छी हो, वो भी आप सीख के ही एडिट करते हो, बिकॉज फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में किसी को नहीं आता इतना अच्छे से एडिटिंग करना, जिनको आता है भाई वेरी गुड फॉर देम, बट जिनको नहीं आता उनको तो सीखना ही पड़ता है यूट्यूब से। लाइक आई लर्नड, तो मैंने उसी से किया था। सो दीज आर द थिंग्स। सो शूट है आपका एंड देन बारिश हो जाती है, ब्लेस यू गाइज। सो दिस इज द थिंग। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए आपको रेडी रहना है बैकअप के साथ कि अब क्या करना है। सो ऑलवेज देयर इज अ टिप, डू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स बिफोर हैंड, लीव एटलीस्ट 2 days गैप कि मैं असाइनमेंट सबमिट करने से पहले 2 दिन तो दूँ कि 2 दिन पहले मेरा काम हो जाए। इफ़ जैसे मैंने बोला अनकंट्रोलेबल पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल बारिश हो जाती है एंड उनको शूट करना है एंड आपने लास्ट डे के लिए छोड़ा हुआ है, देन आप कुछ नहीं करते हो, आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है आप इंडोर शूट करो। इंडोर शूट पे बहुत गंदी लाइटिंग आती है, ट्रस्ट मी आई हैव डन इंडोर शूट एंड इतनी गंदी लाइटिंग आती है कि आपको, आप कितना भी मेकअप कर लो, आप कितना भी लाइटिंग लगा लो, बिकॉज एज अ स्टूडेंट यू डोंट हैव इतने अच्छे इक्विपमेंट्स कि आप कर लो। नहीं तो आप निफ्ट में देयर इज अ स्टूडियोज जो FC लैब्स में होते हैं, नहीं तो एक कॉमन लैब होती है जिसमें होते हैं, इधर आप वो बुक करो। उसको बुक करने के लिए भी आपको तुरंत बुक नहीं होती, यू हैव टू बुक इट बिफोर हैंड एंड ऑल्सो डू रिमेंबर द हॉस्टल एंड टाइमिंग्स अगर आप हॉस्टलर हो फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर तक। सो दैट इज द थिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। एंड देन एज कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ यू विल बी आस्क्ड टू डू, आपको डेस्टिनेशंस में ले जाया जाएगा एंड देन वहाँ से आपको बोला जाएगा वहाँ से रिपोर्ट्स बनाओ, वहाँ से आप फ़ोटो शूट करके लेके आओ। सो मैं बता रही हूँ कॉलेज में जाते ही मेक वन ऑफ योर गुड फ्रेंड, उसी को पकड़ो एंड सारे असाइनमेंट 4 साल तक उसी के साथ करो। आपको पता चल जाता है एक सेमेस्टर में ही कि ये कितना कंपैटिबल है मेरे साथ। ज़रूरी नहीं है दैट पर्सन शुड बी द बेस्ट अमंग द 44 पीपल इन योर क्लास, बट येस इतना कंफर्टेबल आपको पता होगा कि कंपैटिबल है मेरे साथ कि मैं इसके साथ काम कर सकती हूँ। सो यू शुड मेक ऑलवेज योर ग्रुप 1 or 2 पीपल का। इफ़ इट ब्रेक्स ट्राई टू मेक इट अगेन विथ न्यू पीपल, ताकि आपके असाइनमेंट्स में आपको हेल्प हो। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि यू विल बी गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं मानती हूँ। सो बट वन थिंग देयर बी ऑलवेज जिसमें कोई और आपसे ज़्यादा बेटर होगा। सो यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प यू टुगेदर फॉर एन असाइनमेंट्स एंड ऑल्सो फॉर इमोशनल सपोर्ट। इफ़ यू आर वेरी इमोशनली ऐसा स्ट्रॉन्ग देन इट्स टोटली फाइन, बट जब 4 बजे आपका काम नहीं हो रहा होता तब आपको एक दोस्त को कॉल करके बोलना होता है कि भाई तेरा भी नहीं हुआ है क्या, कैन वी प्लीज सिट एंड डू इट टुगेदर। सो बिकॉज आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैंने दोनों फेज देखे हैं अपने, इन माई फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एंड माई थर्ड ईयर आई यूज टू डू माई असाइनमेंट्स अलोन, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता था, मैं पूरा करती थी खुद से। इन माई फोर्थ ईयर ऑल्सो आई यूज टू डू इट अलोन, बट देन प्रेशर इंक्रीज अ लॉट एंड देन मुझे लगता था कि बस मेरे से ही नहीं हो रहा है, मैं ही रात को जग रही हूँ। बट देन आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स एंड मैंने देखा कि इट्स नॉट यू, इट्स एवरी वन हु इज स्ट्रगलिंग। एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू डू स्केचेस। आपके पास गुड पेंसिल कलर्स होने चाहिए बिकॉज इट्स अ रिक्वायरमेंट काइंड ऑफ थिंग। आप नॉर्मल पेंसिल कलर से भी कर लोगे बट यूजुअली स्टेडलर्स ही लोग बोलते हैं लेने के लिए, बिकॉज इट्स यू नो इट्स मच बेटर एंड ऑल दैट थिंग, इट ग्लाइड्स बेटर, इट हैज़ मल्टीपल कलर ऑप्शंस, आपके लिए ईजी रहता है सीखने के लिए। एंड ऑल्सो यू विल बी आस्क्ड टू डू knitting, weaving, knitting in KD, weaving in textile design, asked to do embroidery guys. Like trust me, I've seen people crying over their embroidery assignments because वो होता ही नहीं था उनका। उसके लिए मैं बताती हूँ आपको 6 से 7 सैम्पल बनाने होते हैं, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी के लिए, एंड इट्स इन सेकेंड ईयर आई गेस, इन KD ऑल्सो एंड इन TD ऑल्सो। आपको बैठ के 6 से 7 सैम्पल बनाने होते हैं, आपको थीम खुद से डिसाइड करना है। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स मेड अ वेरी नाइस एम्ब्रॉयडरी असाइनमेंट्स एंड द टीचर गॉट इम्प्रेस्ड। आपको 6 के 6 सैम्पल्स एम्ब्रॉयडरी करने रहते हैं एंड उसमें एक ही चीज़ नहीं दिखनी चाहिए, सब में बीड्स नहीं देखनी फैकल्टी को, सब में यू नो आपके पर्ल्स नहीं देखने, यू हैव टू एक्सप्लोर। तो आप उसके आइडियाज़, पहले तो आपको 1 हफ्ता तो भाई आइडिया ही लेने में लगेगा, दूसरा आप सामान लेके आओगे बिकॉज सामान भी अच्छे से नहीं मिल पाता एंड स्टफ इज़
काइंड ऑफ एक्सपेंसिव. इन निफ्ट आप सामान लेते हो, स्टेशनरी इज़ द बिगेस्ट थिंग जिसमें सारा पैसा जाता है. सो आपको वो भी सोच समझ के लेना है. सो यू विल टेक 1 or 2 days टू गो एंड कलेक्ट द आइटम्स. तीसरे चलो सेकेंड वीक के मिड में आप बैठते हो काम करने के लिए, एंड देन उसके लिए पर पूरा 1 महीना मिलता है. ठीक है, टीचर्स आर ऑल्सो इंटेलिजेंट, दे गिव यू वन होल मंथ. बट वी एज स्टूडेंट्स वी प्रोक्रेस्टिनेट हुआ. टॉकिंग अबाउट द टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट, इसमें भी आपका यही काम रहता है. उसके बाद आपको सबसे बढ़िया काम रहता है 3rd ईयर में, जिसको बोलते हैं वीविंग सैम्पल्स. आपको लूम में बैठ के सैम्पल वीव करने होते हैं. इसके लिए ग्रुप चाहिए होता है, कम से कम 2 या फिर 4 लोगों का. प्लीज़ 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 3rd ईयर आने तक अपने ग्रुप्स अच्छे से बना लेना कि जिनके साथ वीविंग कर सको, जिनके साथ कोई झगड़ा ना हो, जिनके साथ यान खरीदने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, थ्रेड खरीदने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जो रात को 9 बजे तक लैब में बैठ के काम कर सकें आपके साथ विदाउट एनी ऑफ योर स्ट्रेस. बिकॉज काम का स्ट्रेस इनफ होता है कि आप लोगों का स्ट्रेस और लो कि मेरे टीममेट्स काम नहीं कर रहे या फिर मेरे टीममेट्स ने मेरे को कुछ बोल दिया. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव पीसफुल पीपल अराउंड यू बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस अपने पास ऑलरेडी. यू डोंट वांट एनी फर्दर. सो येस, नाउ टॉकिंग अबाउट द BF टेक डिपार्टमेंट, जिसकी तो मैंने अभी तक बात ही नहीं करी, जिसमें मैं खुद हूँ. सो बेसिकली BF टेक डिपार्टमेंट वाज लाइक कि फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स को वो नहीं कराते थे सूइंग, बट इस साल से ने वो भी शुरू कर दिया. आई हैव लेजिट सीन माई जूनियर्स, जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे, यूज्ड टू से आपने तो बताया था कि फर्स्ट ईयर में नहीं होता, अब तो हो रहा है हमारा. आई सेड डूड करिकुलम चेंज, आई डोंट नो व्हाई दे डिड इट विथ यू गाइज, बट येस अब फर्स्ट ईयर से ही आपका स्टिचिंग शुरू हो गया है. BF टेक पीपल स्टिच करना पड़ेगा मशीन पे बैठ के. ट्रस्ट मी, मैं अपना स्टोरी बताती हूँ. द फर्स्ट टाइम आई सैट ऑन द स्विंग मशीन, आई ब्रोक द नीडल. ट्रस्ट मी, एंड आई फेल्ट लाइक कि मैं कैसे करूँगी, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरी नीडल ही टूट गई पहली बारी में. एंड देन यू फील सो डीमोटिवेटेड बिकॉज देयर इज अ एक्सरसाइज जिसमें आपको पूरा बैठ के मशीन को बिना कपड़े बिना किसी चीज़ के बस चलाना रहता है. एंड आई ब्रोक द नीडल एट द वेरी बिगिनिंग, बट ट्रस्ट मी, आई प्रैक्टिस एंड एट वन टाइम आई हैड द बेस्ट स्टिचिंग इन द होल क्लास. लाइक लेजिट फैकल्टी सेड कि भाई इसकी स्टिचिंग सबसे अच्छी है, आपने बाहर से सीखा है क्या? आई सेड नो. एंड आई वॉज लाइक काइंड ऑफ प्राउड एंड आई वॉज लाइक कि चलो, यू शुड नेवर जज योर सेल्फ. लोगों का तो छोड़ो, यू शुड नेवर जज योर सेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू ट्राई समथिंग. सो येस, दैट वॉज द थिंग. अगर मैं फर्स्ट डे डिसअपॉइंट हो जाती, जो कि मैं हो गई थी 2 दिन के लिए, मैं दूसरे दिन स्विंग मशीन में बैठी भी नहीं थी, मैं आई नहीं थी क्लास, कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा. एंड देन सो मैं कभी सिल ही नहीं पाती अच्छे से. स्टिचिंग इज़ अ मस्ट इन निफ्ट कैंपस, निफ्ट का पूरा डिग्री में. Some people don't ever get to stitch, which is textile design, and then it comes the fashion communication design. and AD वालों को भी मतलब ठीक है, उनको हैंड स्टिचिंग वगैरह सिखाते हैं. मशीन स्टिचिंग इन आवर कैंपस आई एम नॉट रियली श्योर, बट येस, डिज़ाइन वाले जितने भी डिग्री के हैं, BF टेक इंक्लूडेड, आप लोगों को तो सिखाते ही सिखाते हैं आपका स्टिचिंग. वो लोग 3rd ईयर तक इतना अंदर तक घुसा देंगे दैट ईच ऑफ योर नर्व विल नो हाउ टू स्टिच. यू विल स्टिच शर्ट्स, स्कर्ट्स, बॉडिसेस, स्लीव्स, कॉलर्स, प्लैकेट्स, व्हाट नॉट, सब कुछ, ड्रेसेस भी. ठीक है. सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से BF टेक पीपल का सबसे गंदा नाइटमेयर हो सकता है कि जिसकी स्टिचिंग अच्छी नहीं है. अबाउट ऑल BF टेक, एंड वन मोर थिंग अबाउट BF टेक इज आपको सोर्सिंग के लिए बाहर भेज देंगे. यू विल बी सेंड आउट टू अ मार्केट जिसमें आपको खुद जाके सामान खरीदना पड़ेगा. ओ माई गॉड, दैट्स द थिंग जिसको मुझे सोच के ही अजीब सा लग रहा है अब. We went to Mangaldas Crawford. People in Mumbai must be knowing this. वो सबसे nastiest market है. उसमें आपके पूरे चप्पल जूते सब गंदे हो जाते हैं, आप खुद गंदे हो जाते हैं. You will be legit smelling like a fish when you will come out of that. इतने सारे eagles होते हैं आपके सर के ऊपर. But then too, you have to go because you need to work and you need to know the real world. And yes, these are the things which no one will tell you. तो हमने बहुत लाइक, मैं मजाक भी नहीं कर रही, मैं 3 दिन सिर्फ मार्केट घूमी हूँ बॉम्बे की, बिकॉज मेरे को कपड़ा नहीं मिला था मेरे असाइनमेंट का. दैट इज़ अ सीयर सकर फैब्रिक एंड इट वाज लाइक मिल ही नहीं रहा कहीं, मिल ही नहीं रहा. और मेरे को देना है असाइनमेंट 1 हफ्ते में, मैं कैसे दूंगी? एंड आई वांटेड दैट ओनली बिकॉज मैंने सिग्नेचर ली थी उस पर कि वही बनाना है करके. आई वेंट टू दादर, आई वेंट टू कोलाबा, आई वेंट टू दिस क्रॉफर्ड, आई वेंट टू मंगलदास. ये सारे के सारे मार्केट्स में गई एंड देन फाइनली आई गॉट दैट फैब्रिक फॉर लेजिट 600 रुपीज़ पर मीटर. एंड मेरे को दिल में भी दर्द हो रहा है वो बोलते हुए, बिकॉज मेरे को उसका इतना सा पीस चाहिए था. भैया बस लाइक नो, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फैब्रिक, आई विल नॉट गिव इट टू यू इन लाइक लेस देन 1 मीटर. एंड आई लेजिट बॉट दैट. सो वेरी sophisticated degree it is, but you have to do a lot of things to get that.
आपको दिन भर रात भर लाइक हम लेजिट 9 बजे तक हमने लैब खुलवाया अपने कॉलेज का, बिकॉज हमारा असाइनमेंट नहीं होता था, बिकॉज स्पेशलाइज मशीन्स आर वेरी लेस इन आवर लैब्स एंड एक टाइम पे एक ही बच्चा उसको यूज़ कर सकता है, एंड वो एक ही मशीन होती थी, 8 मशीन थी, यूनिक 8 मशीन्स, सो 44 पीपल हैव टू यूज़ दैट 8 मशीन्स वन टाइम। तो 9 बज जाते थे, अगले दिन असाइनमेंट होता था, सर रीडू दे रहे हैं, भाई नहीं हो रहा काम, तो 9 बजे तक हम बैठते थे। So you need to be prepared mentally, physically, and also you have to deal with a very good thing जो मुझे लगती है, I would not say peer pressure or something like that, but NIFT and the people आउटफिट इज़ द बेस्ट थिंग जिसको आपको लाइक आई वॉज अ पर्सन जो सिर्फ आउटफिट पहन के खुश रहने के लिए अपने कॉलेज आता था कि काम तो मैं कर ही रही हूँ, पढ़ भी मैं रही हूँ, बट अच्छी बात है हमारे कॉलेज में आउटफिट पहन के जा सकते हैं, अच्छे अच्छे कूल फिट्स पहन के जा सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर इज अ लॉट ऑफ फन थिंग्स ऑल्सो एट निफ्ट। हर महीने कोई ना कोई फेस्ट होता है, हर फ्राइडे टू नेक्स्ट फ्राइडे आफ्टर पार्टीज होती है। इट्स वेरी फन इफ आई कम टू दिस पॉइंट कि आउटफिट्स बनाना है, फैशन शोज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के फ्री पासेस भी मिलते हैं, लैक्मे फैशन वीक के पासेस मिल जाते हैं, काला घोड़ा फेस्ट होता है उसमें जाने को मिल जाता है, लाइक इन मुंबई आई एम सेइंग, ब्राइडल एशिया होता है उसमें जाने को मिल जाता है, फ्री इंटर्नशिप्स मिलती हैं जिसपे यू विल गेट 1 or 2K पर डे जस्ट टू इंटर्न इन अ पर्टिकुलर स्टॉल। सो येस, आई वुड से निफ्ट इज़ रियली फन, बट ये सारा काम करते करते आपको देखना है खुद से कि मैं फ़न कैसे कर सकती हूँ इन सब चीज़ों में। So yes, for me, if you will ask, the exposure is a lot and it might depend from campus to campus, because I was in NIFT Mumbai, तो हम लोगों को like हमारी जो campus है it's very much near to the seas and the ports, तो हम लोगों को दमन लेके गए थे, सूरत लेके गए थे, and then we also went like हम मुंबई में भिवंडी and all that places we used to go just for the देखने घूमने के लिए कि कैसी है इंडस्ट्रीज एंड ऑल दैट, एंड वी यूज्ड टू लव देम, एंड हम गुजरात गए थे एंड आई लव इट समहाउ, बिकॉज हमारा कैंपस बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेता है जाने के लिए विजिट्स पे। आई डोंट नो व्हाट अबाउट द अदर कैंपसेस, बिकॉज मे बी इंडस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ से काफ़ी पास है, यहाँ से पंजाब लुधियाना इज़ ऑल्सो वेरी नियर, तो हम लोग काफ़ी जाते रहते थे वहाँ पे भी। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सपोजर इज़ वेरी गुड। इंटर्नशिप्स हमारी सारी लग जाती थी बिकॉज आवर फैकल्टीज आर लाइक लेजेंड गॉड्स, वो हमें लगवा देते हैं हर जगह। And yes, that is all about, I need to talk about the exposure thing and also like is NIFT worth it or not. And yes, so the final call will be always yours, because each one of the student carries one unique thing when they graduate, and for me I would say for me it was worth it, because if I see NIFT आने से पहले मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, लाइक मेरे में था बट इतना नहीं था, because you will be like forced to give 10 presentations a month or like twice a month, तो आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस का बूस्ट हो जाता है। मेरे को शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स का इतना अच्छे से बात करना नहीं आता था, मैं निफ्ट में आई, मेरे असाइनमेंट्स हुए विच मेड मी गो टू द क्राउडी प्लेसेस, जिसमें जाके मैंने लोगों से बात करना सीखा, इंटर्नशिप्स करना सीखा, हाउ टू लर्न हाउ टू टॉक विथ द कॉर्पोरेट एंड हाउ टू सर्वाइव द कॉर्पोरेट बेसिकली एरियाज एंड स्टफ, how to then I learned how to build my own pitch resumes and everything। मैंने काफ़ी ज़्यादा FCIDM लेके अपना डिजिटल वर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, वीडियो एडिटिंग, मैंने फोटोग्राफी सीखा, मैंने स्टाइलिंग सीखा, मैंने मॉडलिंग सीखा, प्रोडक्ट फोटोशूट सीखा। सो दीज आर द थिंग्स विच आई लर्न, एंड इफ़ आई सी बैक 4 years पीछे, देन आई वॉज अ पर्सन जिसको ये सब शायद नहीं आता था, एंड मैंने अभी आके ये सब सीखा। So I feel like NIFT is kind of worth it for me. I don't know about other people, and I feel like if it was worth it for me, so it can be worth it for a lot of other people as well who carry similar interests and similar goals like me. So yes, that is it for today's video. Hope you enjoyed it, and if you enjoyed it a little bit also, do not forget to like, share and subscribe my YouTube channel, so whenever I post new content you guys get notified first, and let me know if you want to know about the NIFT counseling as well, so that जैसे ही आपके results आए हम फटाफट काउंसलिंग पे शुरू हो जाएं, so that you don't miss your favorite campus।